Hi everyone. Today we will start chapter 3, pair of linear equation in two variable. About linear equation in two variable you are studied in class 9th, and you are well known with linear equation in two variables. Uh, we will start today the pair of linear equation in two variables. Clear? And now we start with linear equation in two variables. Any equations of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real, and both a not equal to 0 and b not equal to 0. Or we can say a square plus b square not equal to 0. Clear? Linear equation in two variables have infinite many solutions, and the graph of linear equation is always a straight line. All these things you have studied in class 9. I just repeat the same. Now, two linear equations in same two variables x and y are said to be pair of linear equation in two variables. In general form, a first equation, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, where a1 b1 not equal to 0 or a square plus b square not equal to 0. Second equation, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a2 b2 not equal to 0 or a2 square plus b2 square not equal to 0. As we know that linear equations in two variable always represent a straight line, if we draw the graph of these two equations on a same graph paper of line 1 and line 2, then there exists three conditions. The first condition, if we draw two lines on the same graph paper, two lines may intersect at a point. Second condition, two lines may be parallel, or last condition should be two lines will be coincident. क्लियर? तो अगर अपन दो लाइनों का ग्राफ बनाए, दोनों स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों लाइनों को ग्राफ पे प्लॉट करें तो निश्चित रूप से तीन कंडीशंस के अलावा चौथी कोई कंडीशंस नहीं आती है. या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी. क्लियर? तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो दो लाइंस मेरे पास थी, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दो लाइंस थी. अगर मैं पहली लाइन के कोफिशिएंट ऑफ x और दूसरी लाइन के कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो निकालूं, दैट मीन्स a1 अपॉन a2, और पहली लाइन के y के कोफिशिएंट्स का रेशियो b1 अपॉन b2 निकालूं और वो दोनों नॉट इक्वल आ जाए, मीन्स a1 by a2 not equal to b1 by b2, so then we can say that lines are intersecting, have unique solution, means exactly one solution, or system of equations are consistent. Now I come to the word consistent. What do you mean by consistent? If we solve these two equations,
or more equation. If there is a common solution between them, means solution is possible, then the system of equations are known as consistent. And if solution is not possible, then the system is known as inconsistent. Clear? तो आपको कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है. सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या है, इनकंसिस्टेंट है. ध्यान रखिएगा. सेकंड कंडीशंस में केस 2 ले रहा हूं मैं. केस 2 में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों इक्वेशन का a1/a2, कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशन का b1/b2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई, दोनों का रेशियो बराबर आ गया. तो मैंने क्या किया कि दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जो थी C1 और C2 उनका रेशियो निकाला, तो वो क्या हुआ, इक्वल नहीं आया. मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2. तो इस कंडीशन में दो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी. एंड जब पैरेलल होगी तो आपस में मीट नहीं करेगी, और मीट नहीं करेगी तो इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा. मतलब दोनों लाइन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा. कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब इंटरसेक्ट नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा दोनों लाइन के ऊपर. एक ही पॉइंट ऐसा हो जो दोनों लाइनों के ऊपर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब दे विल हैव नो सॉल्यूशन. एंड व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आर इनकंसिस्टेंट. क्लियर? अब अपन तीसरी कंडीशन में देखते हैं. रेशियो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई बराबर आ गया, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो C1/C2 किया, वो भी इक्वल आ गया. तो इस कंडीशन में लाइन क्या करेगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगी. तो जब कॉन्साइड कर जाएगी मीन्स कोइंसिडेंट होगी, तो हर पॉइंट पे वो लाइन मीट करेगी. और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, एज यू नो अर्लियर इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट जगह पे वो लाइंस आपस में मीट कर रही है, तो हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. एंड लास्ट कंडीशन इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. मतलब इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, तो कंसिस्टेंट है. एंड डिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि x की कोई वैल्यू डालने पे अपनी y की वैल्यू आएगी, या y की कोई वैल्यू डालने पे अपने को x की वैल्यू प्राप्त होगी. तो मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू पर डिपेंड है, या फिर y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंडेंट है. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट. ये कंडीशंस अपनी हो गई. ये जो कंसेप्ट है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों का है. अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करूंगा अभी. उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी है ये मैं थोड़ा सा ये ओरली डिस्कस करूंगा. फिर अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे. क्लियर? अब अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. जब अपन को वर्ड प्रॉब्लम बनानी होती है तो अपन को क्या क्या चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना होता है. एक चीज़ ध्यान रखना कि जब वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी है तो सबसे पहले अपन उस क्वेश्चंस को आराम से एक बार पढ़ेंगे. क्वेश्चन जैसे ही अपन पढ़ते हैं तो अपन उसमें दो चीज़ें हमेशा आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अपन को जो इक्वेशन बनाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना. और चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो अपन को हर बार दो इक्वेशन अपन को बनानी है और 2 वेरिएबल्स में बनानी है.
तो जैसे ही अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर या तो कोई दो पर्सन होंगे या कोई दो क्वांटिटीज होगी, है ना, तो नंबर्स होंगे, दो एंगल्स होंगे, इस तरह की दो चीज़ें हमेशा होगी। तो सबसे पहला जो काम है, एक को अपन x मानेंगे, दूसरी चीज को अपन y मान लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर अपना ये काम हो जाए कि अपन दो पर्सन या दो क्वांटिटी या दो नंबर को आइडेंटिफाई कर ले क्या क्या है। तो एक को x माना, दूसरे को y मान लिया। अब इसके अंदर जब अपन को इक्वेशंस बनानी है, दो इक्वेशंस बनानी है, तो अपने पास क्वेश्चंस के अंदर दो स्टेटमेंट होंगे हमेशा। क्या होंगे? दो स्टेटमेंट। तो अपन को सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्वेश्चंस का पढ़ना है। उसमें अपन को एक इक्वेशन प्राप्त होगी, फिर दूसरा एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी। तो एक चीज ध्यान रखें, स्टेटमेंट पढ़ते वक्त कुछ वर्ड्स हैं, वो स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इज, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, शुड बी, ये जब भी वर्ड आते हैं, फॉर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, शुड बी, तो उसकी जगह आप इक्वल टू लगाओ। तो आधा स्टेटमेंट लेफ्ट साइड में हो जाएगा, फिर बीच में इक्वल टू आएगा और आधा स्टेटमेंट राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इससे अपनी इक्वेशन जो है बड़े आराम से अपनी बन जाएगी। क्लियर? तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी भी इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी अपना जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, वो एज रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि अपन को इसमें क्या क्या करना है। ठीक है? तो आप उसको अच्छी तरह से गौर से सुनिएगा। मेरा जो मैं बोलता हूँ उसको अच्छी तरह से पूरा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, तो आपकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी है वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, इक्वेशन बना पाओगे। क्लियर? तो अपना पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अपन को इस इक्वेशन को पहले तो algebraically एक्सप्रेस करना है, फिर उसको ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, मेरे पास दो पर्सन आ गए। एक तो आ गया आफ्ताब, दूसरा कौन आया? उसकी डॉटर आ गई। क्लियर? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी वाई ले लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आफ्ताब मीन्स फादर की एज मैंने वाई ले ली। ठीक है? अब अपने पास में यहाँ पे दो सिचुएशंस दे रखी है। एक दे रखी है 7 year ago की सिचुएशन, दूसरी दे रखी है 3 years from now की सिचुएशन, है ना? क्लियर? तो मैंने सबसे पहले प्रेजेंट एज डॉटर की x ईयर मानी, तो 7 year ago जो है डॉटर कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। यूँ मैं एग्जाम्पल लेके बताऊँ, अगर आज आपकी एज 15 ईयर है तो 7 साल पहले आप कितने हो गए? 8 ईयर के, मतलब 15 माइनस 7 किया तो 8 आया। तो इसी तरह अगर डॉटर की एज अगर आज प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर बी x, तो 7 year ago डॉटर एज विल बी x माइनस 7 ईयर, एंड 3 years फ्रॉम नाउ डॉटर एज विल बी x प्लस 3। क्लियर? अब फादर की मीन्स आफ्ताब की, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आफ्ताब, फादर कौन है? आफ्ताब, बी वाई ईयर लिया, तो 7 year ago फादर एज कितना हो गया? y माइनस 3 हो गया, और 3 years फ्रॉम नाउ फादर एज कितना हो गया? y प्लस 3 years हो गया।
क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, एक स्टेटमेंट एक साथ में पढ़ते हैं, एक बार में एक स्टेटमेंट, दूसरी बार में दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पहले इक्वेशन बनाएगा, दूसरा स्टेटमेंट दूसरी इक्वेशन बनाएगा। अब मैं देखो, आफ्टर टेल इज डॉटर 7 year ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन, है ना। तो 7 year ago की कंडीशन है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आफ्ताब को, वॉज मतलब इक्वल टू 7 times ऑफ हिज डॉटर, 7 into डॉटर एज, ठीक है। तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी है, y-7, और इंटू 7 times डॉटर 7 into x-7। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो y इक्वल टू, ये इसको मैंने 7x किया -49, और इस 7 को मैं उधर ले गया तो प्लस का 7 हो गया। तो इससे अपनी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 7x -42। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन है 3 year लेटर की, या 3 year फ्रॉम नाउ की है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है आफ्ताब, ये क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आफ्ताब को। 3 times यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, डॉटर एज। तो ये हो गया आफ्ताब की एज 3 साल बाद में कहते थे, आफ्टर 3 year 5 + 3 इंटू 3 into x + 3। इस 3x, इसको 3 into x + 3 का ये ब्रैकेट में ओपन करता हूँ और उस 3 को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास कंडीशन आती है y इक्वल टू 3x + 9 -3 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू 3x + 6। दो इक्वेशन अपने पास आ गई। अब ये तो अपना क्या हुआ, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इक्वेशंस का दोनों का। अब अपन को ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को पॉइंट्स निकालने होंगे। तो मैं पहले इक्वेशन y इक्वल टू 7x - 42 के 2 पॉइंट लगा लो, x और y इक्वल टू 7x - 42। अगर मैं x की जगह इक्वेशंस में 12 रखता हूँ तो y की वैल्यू तो 7 into 12 - 42, तो 7 into 12 होता है 84, 84 - 42 42। क्लियर। अब इसी तरह से x की जगह मैं अगर 18 पुट करता हूँ तो 7 into 18 - 42 डैट विल बी इक्वल टू 84। क्लियर। तो पहले इक्वेशंस का अपने पास 2 पॉइंट्स आ गए, 12, 42 एंड 18, 84। क्लियर। तो मैंने पहला पॉइंट ए ले लिया 12, 42, बी लिया मैंने 18, 84। मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर डॉटर की एज ली है और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया, फादर एज मीन्स आफ्ताब की एज लिया है। स्केल मैंने एक ग्राफ का एक ब्लॉक जो है 12 का लिया है, क्योंकि 12 की टेबल में आ रहा था वो अपना क्वेश्चन में। 12, 24, 36, 48 एक्स एक्सिस पे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ये अपना वाई एक्सिस। तो ए पॉइंट जो है वो मैंने 12, 42 लिया है, एक्स 12, वाई 42 यहाँ पे कहीं आता है। फिर दूसरा पॉइंट लिया मैंने 18, 84, तो एक्स 18 यहाँ बीच में आएगा, एक्स 18 यहाँ पर आएगा, एक्स 18 और वाई 84 यहाँ पे ये बी पॉइंट आ गया है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची। क्लियर। तो ये लाइन अपनी कौन सी है, फर्स्ट वाली, ये लाइन खींच दी। अब क्या कर रहे हैं अपन, दूसरी इक्वेशन जो थी y इक्वल टू 3x + 6, इसके भी पॉइंट निकाले। तो x इक्वल टू 6 लिया तो y का वैल्यू कितना है, 3 into 6 + 6, 3 into 6 18, 18 + 6 24, तो y की वैल्यू 24 आ गई। x को मैंने 12 रखा तो 3 into 12 36 + 6 ऑफ 42, तो y की वैल्यू 42 हो गई। तो अपने पास अगेन एक पॉइंट आया c, दैट इज 6, 24, और एक नया पॉइंट, एक और पॉइंट आया 12, 42, वो ए पॉइंट भी है ना, ए पॉइंट भी अपना 12, 42 है, तो ए पॉइंट मैंने 12, 42। अब अपन दूसरी लाइन खींच रहे हैं। तो पहला पॉइंट कितना है, x = 6,
तो ये बीच में 0 और 12 के बीच वाला पॉइंट जो है 6 आएगा, x6, और y कितना है 24, तो यहाँ पे 24 पे मैंने सी पॉइंट ले लिया। क्लियर। अब ए पॉइंट तो मेरा पहले से 12,42 ढाई था, तो उसी को लिया। इन दोनों पॉइंट सी और ए को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मैंने खींच दी, तो ये लाइन 2 हो गई। क्लियर, दैट इज रिप्रेजेंट द लाइन 2। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास ये दोनों लाइन कहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ए के ऊपर, है ना, तो दैट इज 12,42। तो इस ग्राफ से अपन ने क्या कंक्लूजन पे पहुंचे अपन कि दोनों x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 42 पे ग्राफ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो x की वैल्यू कितनी आई 12 एंड y इक्वल टू 42 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने कहा था अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो अपने पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एंड यूनिक सॉल्यूशन इज x12 y42। तो मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाज 12 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर। क्लियर। तो ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में करना है, उसका भी ग्राफ प्लॉट करना है, अलजेब्रिक इक्वेशंस निकालनी है। ये परचेजिंग का क्वेश्चन है सेकंड, तो उसमें परचेजिंग का क्वेश्चन जो है थर्ड वाला मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो इसलिए सेम वे में आप उसको भी प्रोसीड सेकंड वाले को करिएगा तो आपको हो जाएगा। तो अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब अपन क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After the month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो अब यहाँ पे अपन को दो चीज़ें नज़र आ रही है, एक तो एप्पल और दूसरा ग्रेप्स। अब देखो अपन को इसने क्वांटिटी दे रही कि इतनी एप्पल खरीदी, इतने ग्रेप्स खरीदे, और टोटल कॉस्ट इसने बता दी। तो इसका मतलब अपन को 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को अपन को x और y मानना होगा। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपी y। तो पहली कंडीशन में कितना kg एप्पल ले रहा है, 2 kg एप्पल ले रहा है, तो 2 इंटू एक्स होगी, और 1 kg ग्रेप्स ले रहा है तो प्लस y हो गया, 2x प्लस y, देन टोटल वॉज इक्वल टू लगा के इक्वल टू 160। अब दूसरी कंडीशन में वो 4 kg एप्पल ले रहा है, 2 kg ग्रेप ले रहा है, 300 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 300। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, 4x प्लस 2y में से, तो मेरे पास बचता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। इस 2 को मैं 300 के नीचे ले जाकर डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा, 150 बच जाएगा। तो अपनी इक्वेशन सेकंड आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 सेकंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली अपनी इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो गई। अब अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, निकलता है नहीं निकलता है। तो पहले इक्वेशन थी मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो मैंने y इज इक्वल टू 2x को उधर भेजा तो 160 माइनस 2x आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू मैंने 40 लिया, तो y कितना है 160 माइनस 2 इंटू 40 डैट इज 80। x अगर मैं 60 लेता हूँ तो y का वैल्यू आ जाता है 160 माइनस 2 इंटू 60, मीन्स 160 माइनस 120 डैट इज 40। तो एक पॉइंट आता है मेरा पहले इक्वेशन में a डैट इज 40,80, b आ जाता है मेरा 60,40। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 को रिप्रेजेंट करेगी। तो a मैंने लिया कितना 40, x 40 और y 160, x 40 y 80 सॉरी, x एक्सिस के ऊपर मैंने कॉस्ट ऑफ
एप्पल्स लिया और वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स लिया है, तो एक्स की वैल्यू तो मेरी 40 थी, तो वाई कितना आया 80 आ गया। अब बी पॉइंट ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी है 60, एक्स 60 लेता हूँ तो वाई कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो ये 40 यहाँ भी आ गया। इन दोनों को ज्वाइन किया तो मेरे पास लाइन आ गई ए बी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, है ना। अब दूसरी लाइन लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अगेन मैंने x की वैल्यू कितनी ली 40, तो y मैंने लिखा 150 माइनस 2x, तो y मेरा आ गया 150 माइनस 2 इंटू 40 दैट इज 150 माइनस 80 दैट इज 70। x को मैंने 60 लिया अगेन, तो y आया 150 माइनस 2 इंटू 60 दैट इज 150 माइनस 120 दैट इज 30। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, p और q ले लिया मैंने दोनों पॉइंट को। पिछली बार अपने पास कॉमन पॉइंट आया था, यहाँ इस बार कॉमन पॉइंट नहीं आया, तो एक पॉइंट आया p 40,70 और दूसरा है 60,30। अब मैंने p पॉइंट ड्रॉ किया, x 40 y 70 यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया x 60 और y 30 है यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने पी क्यू लाइन खींच लिया। क्लियर। अब अपन देख रहे हैं कि दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो ये कहीं मीट भी नहीं करेगी। अगर मैं दोनों को दोनों साइड में एक्सटेंड करूँ तो भी ये मीट नहीं करती है, इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई पैरेलल, इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। अब बाकी का चैप्टर का पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 अपन अगले क्लास में करेंगे। आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज की क्लास। थैंक्स अ लॉट।